Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, My Classroom with Prema Ma'am. Students, today I'm here with Class 7th NCERT CBSE syllabus, chapter number 1, Nutrition in Plants. Yes, today we are going to talk about nutrition in plants. And in this video, I will be teaching you what are different nutrients and what is nutrition. Also, we will study about what is the process of photosynthesis. Then I will discuss about the conductive system and the different modes of nutrition. And don't forget to watch till the end, as I am going to talk about a very important topic, that is the nitrogen fixation. So before I continue this video, I would like to request each and every one of you to kindly like, share and subscribe to my YouTube channel, My Classroom with Prema Ma'am. Now without wasting any more time, get ready with your paper and pen and let's start. So first of all, let's talk about what are nutrients. Nutrients होते क्या हैं? So in a simple language, we can say nutrients are the components of food which are necessary for body. Some nutrients we know are carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. And we are getting these nutrients all either from the plants और the animals. अभी कोई animals है जो कि plant खाते हैं, right? और कोई एनिमल्स हैं जो कि फ्लैश खाते हैं. लेकिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफ वी टॉक अबाउट ह्यूमंस आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स. ओके, सो ये डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जो मैंने बोले अभी, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं और ये हमें या तो प्लांट्स से मिलते हैं या तो एनिमल्स से. तो हम बोल सकते हैं क्योंकि ये जो एनिमल है ये किसी ना किसी तरीके से प्लांट से ही अपना फूड ले रहे हैं, राइट? सो वी कैन से इट दैट ह्यूमंस आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन क्या है बच्चों? So it is the mode of taking food by an organism and then utilization by the body. Body utilize करेगा फूड को. तो जिस तरीके से खाना हम ले रहे हैं या कोई भी ऑर्गेनिज्म का मोड ऑफ टेकिंग फूड जो है और बॉडी कैसे उसको यूटिलाइज करेगी, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन. एंड डिपेंडिंग अपॉन the modes of nutrition, there are two modes of nutrition. The first is autotrophic. As the name suggests, auto means self. That means इसमें जो organisms हैं वो जो खाना बनाएंगे वो अपने आप से बनाएंगे. Okay, they are autotrophic. For example, we can say plants. Okay, plants are going to prepare their own food, right? And the second mode of nutrition is heterotrophic. That means for food they are dependent on others. Okay, we will talk about this autotrophic and heterotrophic mode of nutrition in detail in this chapter. First of all, let's see a short differentiation between autotrophs and the heterotrophs. Okay, so autotrophs ko other name is producer. That means they are going to produce their food, right? They are not dependent on other organisms. Whereas heterotrophs are known as consumers. वो लोग कंज्यूम कर रहे हैं ना, किसी और के हेल्प से फूड ले रहे हैं. दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग फूड. Whereas plants or autotrophs, they are producing their own food. Whereas heterotrophs are the organism that does not make their own food. Okay, they depend on other organism for the food. So autotrophs examples are plants, algae, few bacteria and even phytoplanktons. Whereas heterotrophs के examples में आप humans ले सकते हो, animals, fungi, many of the bacteria and the protozoas. Okay, so ये सब हमारे heterotrophs में आते हैं. So this differentiation, I hope you have understood what are autotrophs and what are heterotrophs.
तो चलो अभी हम ऑटोट्रॉप के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज द प्रोड्यूसर, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स। ओके, तो प्लांट्स अभी खाना बनाने वाले हैं। तो ये तो हमें पता है कि प्लांट जो खाना बनाते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों? यस, वी स्टडीड दिस इन आवर previous classes also, that the process by which the plants are going to prepare their food is called as photosynthesis, right? तो प्लांट खुद से खाना बनाने वाले हैं, right? तो उस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं फोटोसिंथेसिस। तो पूरा प्लांट नहीं खाना बना रहा है, जैसे हमारे घर में एक पर्टिकुलर रूम है ना, किचन है, तो उसी तरीके से यहाँ पे हम बोल सकते हैं लीव्स को एज अ किचन ऑफ द प्लांट्स। ओके, अभी ये खाना बनाने के लिए, फूड प्रिपरेशन के लिए प्लांट्स को लगते हैं कुछ आइटम्स। ओके, क्या क्या चीजें लगती हैं? दे नीड वाटर, मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ओके, ये इंपॉर्टेंट चीजें उन्हें लगती है जिसकी वजह से वो खाना बना सकते हैं। ओके, अभी जैसे हम लोग खाना बनाते हैं, हम लोग तो यूज करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स प्रोडक्ट्स को, राइट? तब जाके हम खाना बनाते हैं और खाते हैं। लेकिन दीज प्लांट्स, दीज ऑटोट्रॉप, दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड। उनको बस क्या चाहिए? पानी चाहिए, मिनरल्स चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज सनलाइट। सनलाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अभी आपको पता है, इसको हम बोल रहे हैं फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे नाम में ही आपको दिख जाएगा फोटो। फोटो मतलब लाइट। ओके, सो लाइट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसलिए हम इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। खाना बन रहा है लेकिन लाइट की प्रेजेंस में बन रहा है, और कौन सी लाइट है इधर? सनलाइट है, राइट? सो लेट्स सी कि ये जो भी चीजें चाहिए प्लांट को खाना बनाने के लिए, वो कहाँ से आ रही है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पानी और मिनरल से, वाटर एंड मिनरल से। ओके, सो फॉर दिस द प्लांट्स हैव अ वास्कुलर सिस्टम, और जिसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट हमें याद रखना है वो है जाइलम। ओके, जाइलम इज द वेसल which will carry water and minerals from the roots to the leaves. लीव्स तक पानी और मिनरल्स पहुंचना चाहिए, तभी लीव्स खाना बनाएंगे, हमने बोला। लेकिन ये पानी और मिनरल्स पहुंचेगा कैसे? इट विल बी conducted by xylem. Okay, here in this picture you can see students, यहाँ पे जो ये xylem है ना, वो क्या है? ट्यूब्स है। ऐसे ट्यूब्स आपस में कनेक्टेड है, जैसे पाइप लाइन होती है, जैसे पाइप्स होती हैं, वैसे ही ये जो ट्यूब्स हैं पाइप की जैसे, वो एक के ऊपर कनेक्टेड है, जिसकी वजह से ये ट्रैवल कर सकता है, कैरी कर सकता है वाटर और मिनरल्स को। तो ये हो गया वेसल्स। ओके, वेसल्स हो गए, और ये वैस्कुलर सिस्टम के अंदर आएगा। अभी रूट से आने वाला है ना, पानी हम किधर देते हैं? सॉइल में डालते हैं ना पानी, तो सॉइल में ही है वाटर और मिनरल्स, राइट? तो ये अब्जॉर्ब कौन करेगा? दिस विल बी अब्जॉर्ब बाय दी रूट्स। ओके, और रूट्स में प्रेजेंट होते हैं बच्चों रूट हेयर। ओके, रूट में प्रेजेंट होते हैं रूट हेयर। रूट हेयर विल इंक्रीज द सरफेस एरिया, और उसकी वजह से ज्यादा वाटर एंड मिनरल्स विल गेट अब्जॉर्ब्ड बाय दी रूट हेयर, बाय दी रूट्स, एंड देन बाय दी जाइलम। ओके, जाइलम के थ्रू ये ऊपर कंडक्ट किया जाएगा, और कहाँ पहुंचेगा? लीव्स के पास पहुंचेगा। ओके, अंडरस्टूड? तो पानी कैसे पहुंच गया लीव्स के पास? कंडक्टिंग सिस्टम कौन है हमारा प्लांट्स का? जाइलम। ओके, जो कि वाटर और मिनरल्स को रूट से लेके जाएगा और पत्तों तक पहुंचाएगा कि तुम खाना बनाओ अभी। ओके, सो अंडरस्टूड कैसे पहुंचा वाटर एंड मिनरल्स? नाउ सेकेंड मैंने क्या बोला, क्या चाहिए था? कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? तो नाउ लेट्स सी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलने वाली है। सो फॉर दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड कि लीफ में एक ओपनिंग है। ओके, टाइनी ओपनिंग्स है, एक नहीं है, मेनी आर देयर। सो इट इज कॉल्ड एज स्टोमेटा, द टाइनी पोर्स विच आर प्रेजेंट इन दी लीव्स। ओके, और ये टाइनी पोर्स से क्या होता है बच्चों? गैसियस एक्सचेंज होती है। ओके, और अंदर क्या आती है? प्लांट के अंदर क्या घुसती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, लीव्स के अंदर क्या पहुंचती है? कार्बन डाइऑक्साइड। इन दिस डायग्राम यू कैन सी हियर दीज टू, ये बीन शेप के आपको दिख रहे हैं। ओके, दीज टू आर दी गार्ड सेल्स, और ये जो ओपनिंग है इसको हमने बोला है स्टोमेटा। ओके, आई रिपीट, यू कैन सी हियर टू गार्ड सेल्स
ओके और ये जो ओपनिंग है दिस इज कॉल्ड स्टोमेटा. सो हियर टू फिगर आई हैव शोन. इन फर्स्ट फिगर द स्टोमा इज ओपन एंड द सेकेंड वन द स्टोमा इज क्लोज्ड. ओके आपको दिख रहा है ये होल बंद हो गया है ना, तो ओपनिंग बंद हो गई है. तो स्टोमेटा आर दी टाइनी पोर्स विच आर प्रेजेंट इन द लीव्स एंड दे हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. और उसी की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाती है, लीव्स के अंदर पहुंच पाती है. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? तो अभी प्लांट्स के पास क्या क्या आ गया, वाटर एंड मिनरल्स पहुंच गया पत्ते के पास, कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच गया लीफ के पास. अभी हमें क्या चाहिए, हमने बोला क्लोरोफिल, राइट? सो व्हाट इज दिस क्लोरोफिल? सो क्लोरोफिल क्या है बच्चों? इट्स जस्ट अ ग्रीन कलर पिगमेंट. ओके ग्रीन कलर का ऐसा पिगमेंट है जो कि लीव्स में प्रेजेंट होता है. हरे कलर का है जिसकी वजह से क्या होता है, पत्ता हरा कलर का होता है ना. तो जैसे हम बोलते हैं हमारा खून रेड क्यों होता है, क्यों होता है हमारा खून रेड बच्चों? ब्लड रेड होता है ना, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, रेड कलर का पिगमेंट, दैट इज हीमोग्लोबिन, इसलिए हमारा ब्लड रेड होता है. उसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि लीव्स होते हैं ग्रीन इन कलर. और वो ग्रीन क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है और उस ग्रीन कलर के पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल. ओके दैट इज क्लोरोफिल. तो बच्चों ये क्लोरोफिल की क्या जरूरत है? अगर पत्ता ग्रीन कलर का नहीं होगा तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? तो सिर्फ ये कलर के लिए नहीं है. ओके क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों? बिकॉज इट इज गोइंग टू कैप्चर द सनलाइट. ओके क्लोरोफिल अब्सॉर्ब कर लेता है लाइट एनर्जी को. ओके सो इट इज गोइंग टू कैप्चर द सनलाइट. और क्योंकि हमने बोला फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट इंपॉर्टेंट है, सनलाइट इंपॉर्टेंट है, तो ये सनलाइट को अब्सॉर्ब करने का काम कौन कर रहा है? क्लोरोफिल कर रहा है. और वो क्लोरोफिल किधर प्रेजेंट रहता है? लीव्स में क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है. ओके सो द ग्रीन कलर पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट. तो क्लोरोफिल क्या करता है? लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेता है और क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट करता है इस एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, जो कि प्लांट फिर लेटर यूज कर पाता है. ओके सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड. क्लोरोफिल प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट में और क्लोरोफिल का मेन काम है कि वो सनलाइट को अब्सॉर्ब करता है और प्लांट्स को मिल जाती है सनलाइट और वो अपना खाना बना पाते हैं. अंडरस्टूड? सो अभी हमारे लीफ के पास सब कुछ पहुंच गया है. क्या क्या पहुंच गया बच्चों? हमने बोला कार्बन डाइऑक्साइड वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच गया. स्टोमेटा ओपन हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चले गया. वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से आए? रूट से अब्जॉर्ब हुए, रूट हेयर ने अब्जॉर्ब करने में हेल्प करी, जाइलम ने कंडक्ट करने में हेल्प करी और पहुंचा दिया लीफ तक. राइट अभी क्या हो गया? सनलाइट मिली. सनलाइट कहाँ से मिली? जो क्लोरोफिल था उसने अब्जॉर्ब कर ली सनलाइट और प्लांट को दे दी, जिसकी वजह से लीफ ने प्रिपेयर किया फूड. और उनका जो फूड है वो रहता है कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में एज अ स्टार्च. ओके सो द फूड दे प्रिपेयर इज द स्टार्च विच इज अ कार्बोहाइड्रेट एंड इन दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड. ओके तो ऑक्सीजन हमारे लिए रिलीज हो गई है ना. एनिमल्स आर यूजिंग दिस ऑक्सीजन, राइट? यस. सो दिस इज हाउ फोटोसिंथेसिस इज टेकिंग प्लेस. और कैसे ये जो मटीरियल्स हैं, जो भी आइटम्स लीफ को लगता है खाना बनाने के लिए, वो लीफ तक पहुंचते हैं. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस स्टूडेंट्स. मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है, आपको समझ में आता है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, तो प्लीज लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय चैनल टू योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, so that it will help me to grow better. So now अभी हमने बोला ये तो green leaves वाले पेड़ हो गए, लेकिन there are some plants which don't have green color leaves. They have non-green color leaves. Okay? तो जैसे कि एग्जाम्पल में क्रोटॉन, आपने ये पेड़ कहीं ना कहीं देखा ही होगा. ठीक है, सजावट के लिए रखते हैं ना इसको, रेडिश कलर के पत्ते रहते हैं. तो ऐसे जो प्लांट्स रहते हैं, किन्हीं किन्हीं प्लांट्स में क्या होता है ना, जो पिगमेंट रहता है, कलर वाला पिगमेंट जो रहता है, ठीक है, जो हमने बोला क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट रहेगा, देखा था ना.
यस। तो जो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट रहता है उसमें पिगमेंट रहता है, तो उसमें कई बार क्या होता है, अलग कलर के पिगमेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे कि रेड कलर का पिगमेंट या ब्राउन कलर का पिगमेंट या कोई और कलर का पिगमेंट ज़्यादा हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्लांट में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, प्लांट में क्लोरोफिल प्रेजेंट है। यू कैन सी फ्यू लीव्स आर ग्रीन इन कलर, यस। सो क्लोरोफिल प्रेजेंट है, लेकिन जो दूसरा पिगमेंट है रेड ब्राउन कलर का, उसने मास्क कर दिया है ग्रीन कलर को। ओके, इट हैज मास्क द green color. So such plants can also prepare their own food, even though the leaves will not appear green, but they are autotrophs. Okay, because the red, brown, any color pigment is masking the green color. Okay, but it doesn't mean that the plant do not have chlorophyll. Plants के बाद chlorophyll है और वो खुद से खाना बना पा रहे हैं। ओके, एंड इसके अलावा अगर आपने देखा होगा जहाँ पे पानी रहता है, जैसे कोई लेक है, ओके, तो उसके ऊपर आपने ये ग्रीन कलर का ऐसा काई बोलते हैं हिंदी में, या फिर यू कैन से एल्गे, राइट। तो दिस इज एल्गे विच इज अगेन एन ऑटोट्रॉप्स। यू कैन सी इट इज ग्रीन इन कलर एंड यस दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। ओके, सो एल्गे इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉप्स. So till now we have seen how plants is preparing their food and the food is in the starch form, right? But what about the other nutrients which is needed by the plant? For example, nitrogen. Nitrogen plant को कहाँ से मिल रहा है? हमने बोला कार्बोहाइड्रेट तो मिल जा रहा है स्टार्च के फॉर्म में, और कार्बोहाइड्रेट बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का. कार्बोहाइड्रेट का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो इट इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन and oxygen. And what about proteins? We know proteins are the nitrogenous compound. Protein तो क्या है? Nitrogenous compound है, उसमें तो नाइट्रोजन रहता है. तो प्लांट्स के पास नाइट्रोजन आता कहाँ से है? From where plants obtain this nitrogen? For this we have to understand a special bacteria called as rhizobium bacteria. Okay? जो कि रूट्स के नोड्यूल्स में ऐसे चिपका रहेगा और उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे. ओके, सो जो नाइट्रोजन प्लांट को देगा उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया. ओके, तो वो करता क्या है बच्चों? जो गैशियस नाइट्रोजन है, हमें पता है हमारे एटमॉस्फेयर में अगर हम एयर का कंपोजिशन के बारे में बात करें तो बहुत सारा नाइट्रोजन है, राइट. सबसे ज़्यादा परसेंटेज में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो उसको कन्वर्ट करता है यूजेबल फॉर्म में. जो हवा में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको ना तो हम यूज कर सकते हैं डायरेक्टली और ना ही प्लांट्स यूज कर सकते हैं. तो ये काम करेगा हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया. इट इज गोइंग टू कन्वर्ट द गैशियस नाइट्रोजन इनटू द यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन. मतलब नाइट्रोजन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा कि प्लांट्स उसको यूज कर सकें. So it is called as nitrogen fixing bacteria, rhizobium. Okay, it is present in the root nodules. You can see here roots के nodules में present रहता है ये. Okay, so rhizobium bacteria is going to convert the gaseous nitrogen into the usable form और उसको वो release कर देगा soil में. फिर plant उसको absorb करेगा और पानी के साथ में ही नाइट्रोजन अब्जॉर्ब होके प्लांट के अंदर जाएगी और यूज की जाएगी. अंडरस्टूड. इसके अलावा अगर नाइट्रोजिनस पाउंड हमें चाहिए सॉइल में, अगर राइजोबियम बैक्टीरिया चाहिए हमें, अभी राइजोबियम बैक्टीरिया हर एक रूट नोड्यूल में ग्रो नहीं होता है. ओके, ये जो बैक्टीरिया है वो हर एक जगह ग्रो नहीं होता है. दीज आर प्रेजेंट इन द लेग्यूमिनस प्लांट ओनली. ओके, सिर्फ लेग्यूमिनस प्लांट में ही ये हमें दिखेगा. तो लेगुमिनस प्लांट्स क्या है बच्चों? ये ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स है जो कि पॉड्स प्रोड्यूस करते हैं. ओके, मेनली ये क्या रहते हैं? प्रोटीन देने वाले सोर्स. ठीक है, मतलब इसमें से हमें प्रोटीन मिलता है. अगर आपको याद रखना है तो जिस भी खाने से प्रोटीन मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल यू कैन से बीन्स, यू कैन से पीज, पीनट, सोयाबीन्स, देन लेंटिकल्स, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ लेगुमिनस प्लांट. ओके, तो उन्हीं पेड़ों में लेग्यूमिनस प्लांट्स पे ही ये ग्रो होते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया.
तो बाकी प्लांट्स को अगर नाइट्रोजन चाहिए तो क्या करेंगे? सो द फार्मर्स आर एडिंग फर्टिलाइजर्स, ओके, एंड ये फर्टिलाइजर्स में प्रेजेंट होता है नाइट्रोजिनस कंपाउंड, जो कि जब सॉइल में जाएगा तो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है और प्लांट्स को भी नाइट्रोजन मिल जाता है, ओके। सो इस तरीके से नाइट्रोजन प्लांट्स तक पहुंचता है। इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर दी प्लांट्स, क्योंकि हमें पता है प्रोटीन बना होता है नाइट्रोजिनस कंपाउंड से और वो नाइट्रोजन इन्हें मिलता है सॉइल से। अलोंग विद वाटर इट इज अब्सॉर्ब्ड। तो बच्चों इस तरीके से हमारा कंप्लीट होता है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिएंट, ओके। अभी हम पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिएंट। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिएंट का मतलब है जो खुद से खाना नहीं बना रहे हैं बल्कि डिपेंड हो रहे हैं या तो प्लांट्स पे या तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हो रहे हैं फॉर फूड, ओके। सो नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स वेयर द प्लांट्स विल डिपेंड ऑन द फूड produced by other plants. So there are different heterotropic mode of nutrients and each I am going to explain you in detail. The very first mode of nutrition in heterotropic is parasitic mode of nutrient. So parasitic mode of nutrition में क्या होता है? For example, we can understand this with the example cuscata, which is also known as the umber bell. You can see this yellow colored, okay, ऐसे लटका हुआ है, right? तो ये प्लांट में पूरी तरीके से प्लांट को ढक देता है, ऊपर ग्रो हो जाता है। कोई ग्रोइंग प्लांट रहता है जिसके ऊपर ये येलोइश कलर का कसकटा ग्रो करता है। अभी जो ये कसकटा है ये जिस प्लांट पे ग्रो करता है बच्चों उसको हम बोलते हैं होस्ट, ओके। तो ये होस्ट से करता क्या है, ये इस पे ग्रो हो जाता है। यू कैन सी दिस इज येलो इन कलर, दैट मीन्स इट डज नॉट कंटेन क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है। तो क्या करता है, ये खाना खुद से बना नहीं सकता है, ओके। इट इज नॉट ऑटोट्रॉप, इट कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो ये अंबर बेल जो कसकटा है वो दूसरे प्लांट पे पूरा ग्रो करता है और जो होस्ट प्लांट है, जो ग्रीन कलर का प्लांट पत्ते दिख रहे हैं ना आपको, उस होस्ट प्लांट से सारे न्यूट्रिएंट ये ले लेता है, ओके। सो इट टेक्स द न्यूट्रिएंट, द वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट प्लांट। इसको खाना बनाना नहीं है, इसको सिर्फ लेने का काम करना है। द फूड इज रेडीमेड, ओके। द प्लांट ऑन विच इट इज ग्रोइंग इज प्रिपेयरिंग द फूड। जिस पे ये ग्रो हुआ है वो प्रिपेयर कर रहा है खाना और रेडीमेड फूड को क्या कर रहा है, ये ले रहा है, ओके। इट इज अब्सॉर्बिंग दैट रेडीमेड फूड। इसकी वजह से क्या होता है, ये जो प्लांट है जो खाना बना रहा है जिस पे ये ग्रो हुआ है, जिसको हम होस्ट प्लांट बोल रहे हैं, उसमें न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, ओके। इट विल डिप्राइव द होस्ट ऑफ ऑल द वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स और इसी वजह से हम इसको बोलते हैं पैरासाइट। ये पैरासाइट की तरह दूसरे पे ग्रो करता है, उनका रेडीमेड खाना ले लेता है और उन्हीं को नुकसान देता है। उस पेड़ को, उस होस्ट प्लांट को क्या कर देता है, ये डिप्राइव ऑफ न्यूट्रिएंट कर देता है। सो कसकटा विल हैव रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, ओके। ऐसे लंबे लंबे रूट लाइक स्ट्रक्चर्स रहेंगे। दिस कसकटा विल ग्रो इन स्पाइरल्स, यू कैन सी हियर, इन स्पाइरल फॉर्म में पूरी तरीके से ये पेड़ को कवर कर देता है। इट विल फॉर्म टैंगल्ड, ओके। पूरे अपने स्टेम से पूरा टैंगल कर देता है, पूरा जाला बिछा देता है होस्ट प्लांट के ऊपर और अब्सॉर्ब करता रहता है वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दी होस्ट प्लांट। So this is one type of heterotropic mode of nutrition. The example is Cuscuta and the mode of nutrient is parasitic mode of nutrition. Okay. So the next type of heterotropic mode of nutrition we can see in the insectivorous plants. For example, we can see here is the picture plant. बच्चों इसका नाम पिक्चर क्यों है, क्योंकि इसमें जो लीफ है वो जग शेप में है। यस, दिस इज अ लीफ, ओके। इट इज मॉडिफाइड लीफ एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर, ओके। पिक्चर मीन्स जग की शेप का है और उसके ऊपर एक ऐसा कवरिंग भी है, ढक्कन भी दिखेगा, ओके, लॉक बंद करने के लिए उसको। सो लिड भी है और जग शेप का है, तो इसको हम बोलते हैं पिक्चर प्लांट।
If we see closely inside this picture are the hairs present which are directed downwards. Okay, hair कैसे है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेजेंट है. अभी क्या होगा अगर कोई इंसेक्ट आके इस पे बैठता है, ओके, बिकॉज इट इज कलरफुल ना, तो इंसेक्ट आके इसके ऊपर बैठेगा. तो जैसे ही उसके ऊपर बैठता है तो ये जो लिड है, ओके, जो हमने लिड बोला वो क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा. ओके, तो अभी क्या हो गया? ये लिड क्लोज हो गया और हमारा इंसेक्ट ट्रैप हो गया है पिक्चर प्लांट के अंदर. अभी क्या होएगा? ये जो पिक्चर प्लांट है ये जूस सिक्रीट करेगा. कौन से जूसेस? डाइजेस्टिव जूसेस. तो ये डाइजेस्टिव जूसेस क्या करेगी? इस इंसेक्ट को पूरी तरीके से डाइजेस्ट करने का काम करेगी. ये इंसेक्ट यहाँ पे ट्रैप हो गया है. कैसे? क्योंकि ढक्कन तो बंद हो गया है और जो हेयर है वो उसको यहाँ पे ट्रैप करके रखेंगे, एंटेंगल कर देंगे. तो इस तरीके से यहाँ पे इंसेक्ट ट्रैप हो जाएगा और डाइजेस्टिव जूस की हेल्प की वजह से उसका जो न्यूट्रिएंट्स है वो पूरी तरीके से प्लांट अब्सॉर्ब करेगा. सो इस तरीके से जो प्लांट इंसेक्ट को खा के न्यूट्रिएंट लेते हैं उन प्लांट्स को हम बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. फॉर एग्जाम्पल इज द पिक्चर प्लांट. Other examples, if you want, you can remember is the Venus flytrap. Okay, you can learn Venus flytrap and sundew. These are the other examples of insectivorous plants. ये ट्रैप कर देते हैं इंसेक्ट्स को और डाइजेस्टिव जूसेस से उस इंसेक्ट को पूरी तरीके से डाइजेस्ट कर लेते हैं और न्यूट्रिशन रिसीव करते हैं. So these are called as insectivorous plants. Example, picture plant, Venus flytrap and sundew. So now we will go to the third type of heterotrophic mode of nutrition and that is saprotropic mode of nutrition. तो saprotropic mode of nutrition में हमें example याद रखना है fungi. So here you can see mushrooms. So mushroom is an example of fungi. सो इसमें क्या होता है? इसमें जो ऑर्गेनिज्म रहेगा वो अब्सॉर्ब करेगा न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिज्म. ओके, डेड और डीकेइंग ऑर्गेनिज्म में से वो न्यूट्रिएंट लेने वाला है. ओके, इसलिए हम उसको बोलते हैं सैप्रोट्रॉप्स. मतलब जो मर गया है वो जो न्यूट्रिएंट लेने वाला है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं ले रहा है. ओके, अनलाइक अदर्स, जैसे हमने फर्स्ट में पढ़ा पैरासाइटिक कसकटा जो कि दूसरे पेड़ पे ग्रो करके न्यूट्रिएंट ले रहा था. हमने सेकंड पढ़ा इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो कि इंसेक्ट को ट्रैप करके न्यूट्रिएंट ले रहे थे. लेकिन जो सैप्रोट्रॉपिक है वो डेड और डीकिंग ऑर्गेनिज्म से ही अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं. ओके, सो द एग्जाम्पल यू हियर यू कैन लर्न इज फंगी, एग्जाम्पल ऑल्सो मशरूम्स and many bacterias are also saprophytes. And as I told you कि ये dead और decaying organism से लेंगे तो ये environment को clean करने का काम कर रहे हैं. Yes, they are also known as the decomposers of nature. नेचर में जो भी चीज मर गई है ना, डेड हो गई है, डीके हो रही है, सड़ रही है, तो उधर ये ग्रो करेंगे और उनसे न्यूट्रिशन लेंगे और हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम करेंगे. सो दे आर ऑल्सो नोन एज द डीकम्पोजर्स ऑफ द नेचर. तो कैसे लेंगे ये न्यूट्रिशन बच्चों? ये क्या करते हैं? ये डाइजेस्टिव जूसेस को इस डेड डीकेइंग ऑर्गेनिज्म में छोड़ते हैं. ओके, एंजाइम्स जो डाइजेस्टिव जूसेस है उस डीकेइंग डेड मैटर में जाती है और एंजाइम डिसॉल्व करती है उस मैटर को और बाद में ये उसको न्यूट्रिएंट के फॉर्म में अब्सॉर्ब कर लेते हैं. तो पहले खुद ही डाइजेस्टिव जूसेस छोड़ते हैं ताकि डेड डीकेइंग मैटर में जो भी न्यूट्रिएटिव रहेगा वो डिसॉल्व हो सके और बाद में ये सैप्रोफाइट्स उसको अब्सॉर्ब कर सके. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ सैप्रोफाइट्स आर टेकिंग द न्यूट्रिएंट. एग्जाम्पल आई टोल्ड यू फंगी इज एन एग्जाम्पल ऑफ सैप्रोफाइट. And now comes a very interesting mode of nutrition in plants is the symbiotic mode of nutrition. Symbiosis or symbiotic. So there is a relationship, okay? दो organisms के बीच में relationship बन रही है. They are going to share, okay?
सो शेयरिंग चल रही है यहाँ पे, तो क्या शेयर करेंगे? दे विल शेयर द शेल्टर एंड द न्यूट्रिएंट। ओके, तो कुछ ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं और शेयर करते हैं शेल्टर और न्यूट्रिएंट को। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, यू कैन लर्न हियर इज लाइकन। ओके, अभी ये लाइकन क्या है? सो दिस इज टू ऑर्गेनिजम्स, एल्गा एंड फंगस लिविंग टुगेदर। सो वी ऑल नो फंगस डोंट हैव क्लोरोफिल। ओके, सो तो ये ऐसी ऑर्गेनिज्म के साथ में पार्टनरशिप करेगा, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप निभाएगा, जिसके पास क्या हो? क्लोरोफिल हो। अंडरस्टूड? ताकि क्लोरोफिल वाला ऑर्गेनिज्म खाना बना सके और ये उसको बदले में कुछ दे सके। क्या देगा? इट विल प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स। ओके, सो ये एग्जाम्पल है हमारा लाइकन, अ फंगी which grow and make a relationship between, symbiotic relationship बनाता है algae के साथ में। okay, so the fungus will provide shelter and water and minerals to the algae and in return algae उसको खाना provide करेगा, nutrition provide करेगा। okay, so this is an example of symbiotic mode of nutrition। तो ऐसा ही एक और एग्जाम्पल जो कि हमने पहले भी पढ़ा इज राइजोबियम बैक्टीरिया। यस, यू हर्ड मी राइट। हमने अभी पढ़ा ना राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में। तो ये कहाँ पे ग्रो होते हैं? हमने बोला लेग्यूमिनस प्लांट्स पे, है ना। लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स पे राइजोबियम बैक्टीरिया ग्रो होते हैं और जो नाइट्रोजन है उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ दिस राइजोबियम बैक्टीरिया इज फॉर्मिंग अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। So now I'm going to talk about very important topic, that is nitrogen fixation. Okay, so already I have told you about the rhizobium bacteria जो कि प्रेजेंट रहते हैं लेग्यूमिनस प्लांट। फॉर एग्जाम्पल पी प्लांट इज अ लेग्यूमिनस प्लांट। कैसे याद रखेंगे? लेग्यूमिनस प्लांट कौन से होते हैं? जो भी हमें प्रोटीन देते हैं, ठीक है, उनको हम लेग्यूमिनस प्लांट्स बोल सकते हैं। दे फॉर्म पॉड्स। ओके, सो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या कर रहा है बच्चों? वो नाइट्रोजन ले रहा है। कहाँ से? एटमॉस्फेयर से। हमने कहा एटमॉस्फेयर में बहुत नाइट्रोजन है, बट दिस कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली बाय द प्लांट्स एज वेल एज बाय द एनिमल्स। सो दिस नाइट्रोजन इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू द यूजेबल फॉर्म। ओके, और ये कन्वर्शन कौन करने वाला है? ये कन्वर्शन करने वाला है हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया। सो राइजोबियम बैक्टीरिया कन्वर्ट कर रहा है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में। ओके, तो बच्चों क्या फायदा हो रहा है? वो तो दे रहा है, ठीक है, नाइट्रोजन कन्वर्ट करके दे रहा है, लेकिन वो वहां पे रह रहा है तो उसको भी कुछ बेनिफिट होना चाहिए ना। एज आई टोल्ड यू, इट इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो क्या उसको फायदा हो रहा है? क्या बेनिफिट हो रहा है? द लेग्यूमिनस प्लांट, okay, the leguminous plant in return will give food as well as shelter। उसको रहने को जगह दे रहा है, ओके, और उसको खाना भी दे रहा है। खाना क्यों दे रहा है बच्चों? क्योंकि जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो खाना खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकता है। डू नॉट हैव क्लोरोफिल, वो खुद से खाना नहीं बना सकता है। इट इज अ हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिएंट। ओके, सो वो क्या करेगा? वो लेग्यूमिनस प्लांट के रूट्स में ग्रो करेगा और उनसे फूड और शेल्टर लेगा। इन रिटर्न वो उनको नाइट्रोजन देगा, ओके, जो कि वो यूज कर सके। तो ये जो है वो क्या है? एक सिम्बायोटिक रिलेशन है। ओके, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो दो एग्जांपल्स हो गए हमारे। एक हो गया राइजोबियम बैक्टीरिया जो भी डिस्कस किया हमने, और उससे पहले हमने लाइकेंस पढ़ा। लाइकेंस विल शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट, राइट। वी स्टडीड कि एक फंगस है जो कि ग्रो होएगा एल्गे के साथ में और वो उसको देगा, क्या देगा? शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। उसके बदले में एल्गे क्या देने वाला है? उसको फूड देने वाला है ना, क्योंकि जो फंगस है वो खुद से खाना नहीं बना सकता, तो इसलिए एल्गा इसको खाना देगा और लाइचन उसको वाटर, मिनरल और शेल्टर प्रोवाइड कराएगा। अंडरस्टूड? So this is how the symbiotic mode of nutrition takes place. We have discussed about nitrogen fixation.
So I hope students you have understood this chapter. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. I would love to answer you. And before ending this video, let's quickly revise what all we studied today. First of all, we studied about what are autotrophs and what are heterotrophs. We even studied about the process of photosynthesis and the different things that are needed for photosynthesis and from where are these things obtained to the leaves. We've studied about the different modes of nutrients, right? हमने बोला कुछ प्लांट्स तो खुद से खाना बना लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अलग तरीके से खाना न्यूट्रिशन लेते हैं. उसमें सबसे पहला हमने पढ़ा पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें एग्जांपल हमने पढ़ा कसकटा जो कि दूसरे प्लांट में ग्रो होता है होस्ट प्लांट में और एज अ पैरासाइट उससे न्यूट्रिएंट लेता है. देन नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने पढ़ा इंसेक्टिवोरस प्लांट. फॉर एग्जांपल वी स्टडीड अबाउट द पिक्चर प्लांट विच ट्रैप द insects inside and obtain the nutrient. Then we again studied about the saprotrophic mode of nutrient, जिसमें हमने फंगी के बारे में पढ़ा जो डेड और डीकेइंग ऑर्गेनिज्म से क्या ले रहा है, न्यूट्रिशन ले रहा है. ओके. ऑल्सो वी स्टडीड अबाउट द सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रहा है. ओके. तो शेल्टर और न्यूट्रिएंट दोनों आपस में शेयर कर रहे हैं. एग्जाम्पल हमने पढ़ा लाइकन एंड द अदर एग्जाम्पल वी स्टडीड अबाउट द राइजोबियम बैक्टीरिया. ऑल्सो वी स्टडीड अबाउट हाउ नाइट्रोजन इज फिक्स्ड इन एनवायरमेंट. नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पढ़ा, द रोल ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया and how it is having a symbiotic relationship with the leguminous plants. So I hope you have understood all these topics. Before I end my class, I request every one of you to please like, share and subscribe to my YouTube channel, My Classroom with Prema Ma'am. Keep studying, keep revising. Thanks for watching. Bye bye.